Hello everyone, welcome back. In previous modules, what we have seen is what is cash book, how it is related to NPO. Then we have also understood the receipt payment account. We have seen different types of receipts. We have seen different types of payments, the relevance with the NPO. Now it is time to understand the final accounts or financial statements of NPO. So here we go. Let us try to understand what types of accounts we need to prepare, what other statements we have to prepare for not-for-profit organizations. So, final accounts of NPO. The not-for-profit organizations are also required to prepare final accounts at the end of each accounting period. Now, the major purpose to prepare final accounts is to understand profit or loss during the period and to understand the financial position, that is what are the assets, liabilities and capital left in the business. That is what we have seen, but it is for the profit making organizations. Now why we need final accounts in NPO? Let us try to understand this. Look at it. These are the financial statements we need to prepare. Generally, we'll be preparing it from April to March only. That is our accounting period, accounting year. Although these organizations are non-profit making entities, that is, there is no profit motive behind it, and they are not required to make trading profit loss account, but it is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet the expenses or not. That is what we have seen, right? अगर profit करना ही नहीं है, profit अपना aim ही नहीं है, तो जितना भी incomes है वो expense से match होना चाहिए. That is what we have seen. तो वो हो रहा है कि नहीं, ये समझने के लिए final accounts तो बनाना पड़ेगा, right? Not only that, they have to provide the necessary financial information to members, donors and contributors and also to the registrar of societies. ये necessary information चाहिए, उसके लिए हमें accounting करना पड़ेगा, right? Now, ये देखो, registrar of society मतलब government authority है ये. For this purpose, they have to prepare their financial accounts at the end of the accounting period, and the general principles of accounting are fully applicable in their preparation. End of the period ही बनेंगे. Obviously, final accounts अगर हम बात कर रहे हैं, financial statements बना रहे हैं, it would be at the end of the accounting period. और जो भी general accounting principles है, यहाँ पे भी apply होंगे. Now, here we go. Final accounts of non-profit organization. क्या क्या बनता है? It consists of what? Receipt payment account. Do you remember? In previous to previous module, we have done this. Now, income expenditure account. This is the account which we will prepare to know the total incomes and expenditures, whether they are matching or not. इसके लिए ये account बनाएंगे. And finally, balance sheet. ये तो बनेगा ही. Assets है, liabilities है, तो balance sheet तो बनेगा. Now, let us try to understand each and everything step by step. सबसे पहले receipt and payment account. The receipt and payment account is summary of cash and bank transactions. That is what we already know now, which helps in preparation of income and expenditure account and balance sheet. Besides, it is legal requirement as the receipt and payment account has also to be submitted to registrar of societies. मतलब आपको काम आ रहा है नहीं आ रहा है doesn't matter. Legal requirement है, इसके लिए ये बनाना ही पड़ेगा आपको receipt payment account, right? और ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे बोला है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने के लिए काम तो आता ही है. नाउ along with the income expenditure account and balance sheet, ये रजिस्ट्रार को देना पड़ता है हमें, ठीक है? रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को ये तीनों स्टेटमेंट्स हमें सबमिट करने हैं. Now the next one is income expenditure account. Income expenditure account is akin. Akin का मतलब क्या? Similar to profit and loss account. All the revenue expenses are transferred to debit side, that is expenditure side of the income and expenditure account, and obviously all the revenue incomes are posted to credit side of income and expenditure account. आपको याद है हमने previous module में जब types of receipts and payments देखा था, हमने ये देखा था कि all receipts are not income. याद है क्या? Only revenue receipts are your income. और इसीलिए ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, revenue incomes are posted to credit side of income expenditure account. हमें सिर्फ revenue receipts ढूंढना है from your receipt side of receipt payment account, और वो revenue receipt यहाँ पे लिखना है. Similarly, expenditure side में भी हमें revenue payments ढूंढने हैं,
और वो लिखना है। योर रिसीट पेमेंट अकाउंट विल कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, ऑल रिसीट्स, ऑल पेमेंट्स, डजंट मैटर वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल। हमें उनमें से रेवेन्यू निकालने हैं, जो भी आइटम्स है वो, और यहां पे लिख देने हैं। देखो इनकम साइड, क्रेडिट साइड इज इनकम साइड। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का अगर बात करेंगे तो ये लगभग आप अगर देखोगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसा ही लग रहा है ना फिलहाल, कि डेबिट साइड में हमें एक्सपेंडिचर्स लिखने हैं, क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखने हैं, राइट। बैलेंस शीट, बैलेंस सॉरी, इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होगा? इफ क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, मतलब क्या? इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंस। अभी मैंने बोला कि डेबिट में एक्सपेंसेस लिखेंगे, क्रेडिट में इनकम लिखेंगे। सो इफ इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस, तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं? इनकम मोर देन एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज करना पाप है, पाप। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब ही सीधी सीधी भाषा में सरप्लस, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज सरप्लस। एंड इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, मतलब क्या? एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। यूजुअली ट्रेडिंग बिजनेस के लिए उसको हम लॉस बोलते हैं। यहां पे लॉस भी नहीं बोलने का, यहां पे क्या बोलने का? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब ही क्या हो गया? ये डेफिसिट। यस, सो इफ इनकम्स आर मोर इट इज सरप्लस, इफ एक्सपेंसेस आर मोर इट इज डेफिसिट। बढ़ते हैं आगे। नाउ व्हाट अबाउट बैलेंस शीट? बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है यार, उसमें एसेट लायबिलिटी साइड ही रहेगा, बट स्टिल द बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ इज सिमिलर टू द बैलेंस शीट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जो हमने पढ़ा है। ऑल द लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब ये अद्भुत बात बताई है यहाँ पे कि लायबिलिटी लायबिलिटी साइड पे लिखना है बाबा, ठीक है। सो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट, whereas all the assets are recorded on asset side of the balance sheet। वाह क्या बात है, सब एसेट्स हमें एसेट साइड पे लिखना है, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल फंड, अदर फंड्स एंड लायबिलिटीज एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये जो फंड्स है सब लायबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इट्स फीचर्स। क्या क्या करना है? रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट सबसे पहले हमने देख लिया है, और मैंने आपको बताया भी था कि यूजुअली आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाने नहीं आता है, रेडीमेड दिया जाता है क्वेश्चन में, उससे ऑन बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसलिए अभी देखेंगे व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फर्स्ट, और फिर फीचर्स देखेंगे उसके। सो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट कंपेयर्स इनकम्स अर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड विद एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। The balancing figure in income expenditure account is, that is difference, is excess of income or expenditure if credit total is more, that is surplus, or excess of expenditure or incomes if debit side is more, that is deficit। या तो ये surplus रहेगा या तो deficit रहेगा। कभी ऐसा हो गया तो सर कि मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर साइड सेम आ रहा है, टोटल ना एक्सेस एक्सपेंडिचर है ना एक्सेस इनकम है, तो अच्छी बात है। एनपीओ में वही तो हमें अचीव करना है कि जितना आपका इनकम से उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो वैसा हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बैलेंस ही नहीं है उसमें, ना सरप्लस है ना डेफिसिट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बहुत रेयरली दिखेगा आपको, सरप्लस या डेफिसिट आएगा। द सरप्लस डेफिसिट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड टू क्लोज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो आपको सिर्फ रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं, ये जैसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिलता है तो हम क्या करते हैं, वो कैपिटल में ऐड या लेस करते हैं ना लायबिलिटी साइड पे, वैसे ही यहां पे सरप्लस या डेफिसिट मिलेगा तो वो कैपिटल फंड में, मतलब ही कहां पे, लायबिलिटी साइड पे ही हमें वो एडजस्ट करना है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों नॉमिनल अकाउंट? क्योंकि हमने जब इसका बेसिक थियरी पढ़ा था तब हमने ये देखा कि डेबिट साइड पे हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम्स लिख रहे हैं, बराबर। डेबिट ऑल, वेरी गुड, एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल, इनकम गेन, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंडिचर्स आएगा। अभी ये ई क्यों लिखा है आगे? इट इज जस्ट अ एब्रिविएशन टू इंडिकेट ये एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है। और फिर अमाउंट के कॉलम, इनकम्स आएगा क्रेडिट में, ये देखो स्टार मार्क किया है यहाँ पे। सो आई लिखा है जस्ट फॉर एब्रिविएशन टू बी यूज्ड टू इंडिकेट इनकम साइड। सो ये ऐसा आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखेगा जैसे हम P&L अकाउंट बनाते थे पहले। नाउ इट्स डेबिट साइड शोज ऑल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू द करंट ईयर। और कौन से एक्सपेंस?
रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में खाली रेवेन्यू वाला पार्ट जाने वाला है, भले एक्सपेंस हो गया इनकम हो, बट रेवेन्यू रिकरिंग वाले। देखो, मे और मे नॉट बी पेड इन करंट ईयर, करंट ईयर के लिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है, तो करंट ईयर के लिए जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में लिखेंगे, भले वो पेड है कि पेएबल है, बट अगर वो करंट ईयर के है तो हमें वो लिखने हैं। नाउ ये देखो एग्जांपल, ये हमने सब फाइनल अकाउंट्स, मतलब आपके ट्रेडिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में भी ये सब एडजस्टमेंट्स किए ही हैं, सिर्फ जस्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका एनपीओ के लिए। देखो, रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स इज 10,000, तो कभी भी हमने सिर्फ 10,000 लिखा है क्या रे? अगर 10 महीने का ही रेंट दिया है, आप इसको एडजस्टमेंट ट्रीट करके क्या बोलते थे, अरे सर एक साल में तो 12 महीना आता है, तो 10 महीने का अगर पेड है तो 2 महीने का पेएबल है, वो भी तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि वो करंट ईयर का है, दो इट इज नॉट पेड। शेम शेम करने का रे बाबा, अलग करना ही नहीं है कुछ। इट इज अल्टीमेटली व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स ही है ये, ठीक है। सो देखो, रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स 10,000, 2 मंथ्स रेंट इज आउटस्टैंडिंग, thus रेंट ऑन एक्सपेंडिचर साइड वुड बी 12,000। कैसे? 10,000 पेड, 2,000 पेएबल, यही तो करते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। इट्स क्रेडिट साइड शोज ऑल इनकम्स पर्टेनिंग टू द करंट ईयर, दोज आर रेवेन्यू इनकम, जैसे अपना बात हुआ रेवेन्यू ही लिखना है हमें, बट ऑल इनकम्स, भले रिसीव्ड रिसीवेबल, लेकिन करंट ईयर के है तो हमें लिखना है। देखो एक और बार, देखो मे बी रिसीव्ड और रिसीवेबल, मे नॉट बी रिसीव्ड। देखो ये एग्जांपल लेते हैं, 10% इन्वेस्टमेंट रुपीज 1 लाख, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, रिसीट साइड शोज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000, बट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम साइड वुड बी 10,000। 1 लाख पे 10% कैलकुलेट करना है तो दैट इज 10,000, भले 8,000 मिला है, हम क्या लिखेंगे, रिसीव्ड 8,000, रिसीवेबल 2,000, ऐसा क्रेडिट साइड पे पूरा 8,000 प्लस 2,000 10,000 दिखाएंगे, राइट। उसके बाद इफ टोटल इनकम इज मोर देन द टोटल एक्सपेंडिचर द बैलेंस इज कॉल्ड सरप्लस। ये देखो एक जस्ट रैंडम एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इनकम्स है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स है, सो यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे 30,000 इज योर इनकम and 20,000 are your expenditures. So total incomes are more than the expenditures. The balance should be surplus. Okay? ये surplus कैसे लिखेंगे? Same. Heavier total on both the sides, balance on lower side above the total. जो हम करते हैं लेजर के लिए, वैसे ही. Ultimately it is account. लेजर है ये. Right? 10,000. Excess of income or expenditure. नाम क्या दिया? Excess of income or expenditure. फिर आप लिखो surplus. डायरेक्टली टू सरप्लस ऐसा मत लिखना, ठीक है। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर लिखना। सो ये हो गया सरप्लस से रिलेटेड। इफ टोटल एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन द इनकम द बैलेंस वुड बी डेफिसिट। भले सरप्लस हो के डेफिसिट हो, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट। ये देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी फर्स्ट साइड जैसे हम कैपिटल लिखते थे, याद है क्या? वेरी गुड। वैसे यहाँ पे कैपिटल फंड लिखेंगे, उसमें सरप्लस रहेगा तो ऐड, डेफिसिट रहेगा तो माइनस, ऑब्वियसली। ये देखो, और फिर कैपिटल फंड आपका, अगर कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। उसके फीचर्स भी हमने देख लिए। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली आप ज्यादा यूज्ड टू होंगे ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से, लेकिन हमने ऑलरेडी ऐसे टाइप का अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट किया है। ऑब्वियसली सेम नहीं है बट बहुत सारा चीज सिमिलर है, तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत आएगा नहीं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। ये मॉड्यूल में इतना ही। आगे बढ़ते हैं। जिनको थोड़ा सा यहां वहां हुआ था ध्यान हट गया था, वापस एक बार देख लो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। विल मीट इन नेक्स्ट मॉड्यूल।